Assalamu alaikum, Aisha. Hope you're doing great. Thank you so much for joining the session. Walaikum assalam. Thank you so much for having me. It's a very long waited thing. कभी मैं फ्री नहीं होता था, कभी आप बिजी होते थे. But nevertheless, it's good that we connected now. So we got the main idea, and I think we both are doing the same purpose of getting knowledge from different people. I'm trying to give it to the right audience. Okay. So before I started, I'm pretty much sure you are a slab right now on LinkedIn. But just for the audience, if you can tell me about yourself, ये कैचअप विद आयशा के अलावा आयशा क्या कर रही हैं? हाउ इज़ एवरीथिंग? एंड देन we'll start the conversation. Okay, thank you so much, Umair. So, everyone, Assalamu alaikum. This is Aisha Yusuf, and I'm a marketing professional. I have been working in this profession for 5 years now, and I'm still pursuing my career as a nahi, but along with my career, I had that drive to, fulfill my passion. So, I'm working on my passion project that is Catch Up with Aisha now. And it's a podcast channel, but not just a podcast channel. Now it has opened a lot of avenues for me for outreach partner as well. So yeah, I'm loving it. गुड, गुड, गुड। सो पहली पहली चीज़ इसी कैचअप विद आयशा पे डिस्कस कर लेते हैं। लॉट ऑफ पीपल यूजुअली आई एम प्रीटी मच श्योर लॉट ऑफ पीपल व्हेन एनी कंटेंट क्रिएटर स्टार्ट मेकिंग कंटेंट, ठीक है? तो बहुत सारे लोगों से ये पूछता हूँ कि फाइंड द मेन पर्पस ऑफ मोनेटाइजिंग योर चैनल एंड गेटिंग मनी आउट ऑफ इट। व्हाई कैचअप विद आयशा? ठीक है? एट व्हाट टाइम यू रियलाइज़ के दिस इज़ समथिंग दैट आई वांटेड टू डू? Okay, Umair, so, since childhood, I had one thing in me that I have to serve the community. Now, everyone has their ways to serve the community. One thing that I have very firm belief in is purpose. I believe कि हर इंसान के साथ ना कोई पर्पस एसोसिएटेड होता है. इफ वी आर बीइंग सेंट ऑन दिस अर्थ तो कोई पर्पस होगा ना. सिर्फ 9 to 5 जॉब करने के लिए तो हम नहीं बने. Like you are doing this gupshup because there's a purpose associated of your life with this platform. Similarly, when I started Catch Up with Aisha, it has been a long, passion. I was driven towards it, and it was my calling. I would say it was my calling कि मुझे हो सकता है अल्लाह ताला ने जो मुझे आवाज़ दी है, ये स्पीकिंग टैलेंट दिया है, यही मेरा पर्पस है टू सर्व द कम्युनिटी. So the guests I, call on my show, and through my show, if anyone watches this content or my own content and they says that we did not give up in life because we saw you, we heard you. That's my purpose with Catch Up with Aisha. तो मुझे ये जो रियलाइजेशन वाली बात है, आई वुड से चाइल्डहुड से ही ये चीज़ तो मेरे अंदर थी ही that I want to do something big, right? But a lot of challenges comes along. आप सबसे पहला चैलेंज होता है exploration of your own self. And then everyone has that fear of how people will perceive you. उस चक्कर में बहुत चीज़ें तो आप कर ही नहीं पाते अपनी लाइफ में. सो इट टुक मी अ लॉन्ग वे टू स्टार्ट इट, बट नाउ व्हेन आई हैव स्टार्टेड आई थिंक दैट आई एम एब्सोल्युटली इन द राइट डायरेक्शन. Good to know that, Aisha, that you started that and you're right here. ऐसा नहीं हो सकता कि आप बस आएँ और 9 to 5 करें और चले जाएँ, ठीक है? दैट कम्स टू अनदर पॉइंट दैट आई वांटेड टू डिस्कस। हम पहले कुछ सवाल जो है कैच अप विद आयशा पे ही रखते हैं, ताकि हमें पता चले कि किस तरीके से। बट इससे एक और चीज़ आती है कि यार अ लॉट ऑफ पीपल यूजुअली व्हेन आई मीट इन पाकिस्तान स्पेसिफिकली, ठीक है, दे आर लाइक यार हमारे पास टाइम नहीं है, ठीक है? दे आर बिज़ी इन देयर लाइफ, दे आर बिज़ी इन देयर वर्क एंड मुझे ऐसा लगने लगा है कि पाकिस्तान में लोग अपनी नौकरी को अपनी लाइफ समझ लेते हैं, ठीक है? इट्स नॉट 9 टू 5, इट्स लाइक 24/7, ठीक है? हाउ डू यू मेंटेन योर डिसिप्लिन, ठीक है? क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाता है। अगर अब मैं सीनियर पोज़ीशन की बात करूँ तो समझ में आता है कि ठीक है यार, उनके पास असिस्टेंट होते हैं, ठीक है? आप हम कोई सीईओज़ या सीएफओज़ नहीं है। ऑल्दो वी आर रनिंग आवर ओन स्मॉल काइंड ऑफ अ बिज़नेस, बट ठीक है, हमारे पास कोई पर्सनल असिस्टेंट नहीं है जो हमारा कैलेंडर देख रहे हैं, ठीक है? 24 घंटे आपके पास नहीं है, 24 घंटे मेरे पास नहीं, 24 घंटे सबके पास है, ठीक है? और अगर आपको कुछ करना होता है तो आपको उन्हीं 24 घंटे में करना है। हाउ यू मेक योरसेल्फ डिसिप्लिन, बिकॉज़ आई एम प्रीटी मच श्योर व्हेन यू आर वर्किंग 9 टू 5 इन अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड, तो आपकी लाइफ में भी वो सारे पेन पॉइंट्स होंगे जो दूसरों की लाइफ में है। हाउ यू आर मैनेजिंग इट? व्हाट आर द राइट कॉमन फैक्टर्स दैट यू से कि यार लोगों को इनको फॉलो करना चाहिए, बेशक वो पैशन प्रोजेक्ट या कोई गपशप सेशन या कैचअप विद आयशा ना भी करें, तो एटलीस्ट अपने आप को तो टाइम दें जिनको उसमें खुशी मिलती हो करने में, ठीक है? सो हाउ डू यू डू दैट एंड एनी टिप्स एंड ट्रिक्स कि
how people can learn like do that? अच्छा, मैं ना पहले आपकी बात पे आऊँगी। आपने कहा लोग अपने काम को ही सब कुछ समझ लेते हैं, तो फिर अपने पैशन को टाइम नहीं देते। हमारा वर्किंग कल्चर भी कुछ इस तरह का है। दे पुट अ लॉट ऑफ प्रेशर। आई हैव सीन ऑर्गनाइजेशन पुटिंग अननेसेसरी प्रेशर ऑन एम्प्लॉइज़। देखें, अगर आपके वर्किंग आवर्स में काम हो सकता है, आप टाइम पे काम शुरू करें, टाइम पे काम खत्म करवा लें। क्यों ऑफ टाइम पे ही चीज़ें लेकर आना है? क्यों घर जाने के वक़्त ही उन चीज़ों को ब्रिंग अप करना है कि अब चेंजेस यू नो दैट्स अ गैप। ये दोनों तरफ से चीज़ें समझने की ज़रूरत है। एम्प्लॉयी को भी अपनी बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत है कि उसका बर्नआउट ना हो जाए। दिस लीड्स टू बर्नआउट। व्हेन दिस लीड्स टू बर्नआउट, आपके पास आप एक्स्ट्रा आवर्स दे रहे हैं, आप बैठ रहे हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी भी नहीं, इट्स गेटिंग कॉम्प्रोमाइज़, तो फिर आपके पास टाइम ही कहाँ है कि आप मी टाइम निकालें, आप अपने पैशन पे काम करें। सो फर्स्ट थिंग दैट ऑर्गनाइजेशंस आल्सो नीड टू अंडरस्टैंड दैट जब हम वर्क लाइफ बैलेंस की इतनी बात करते हैं और ट्रेनिंग्स करवाते हैं ना, तो उस पे इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। और वो इम्प्लीमेंटेशन आपके अपने एम्प्लॉइज़ से ही स्टार्ट होगा। अच्छा, अब हम बात आते हैं सेकंड बात पे कि मैं कैसे मैनेज करती हूँ। देखिए, एक चीज़ और है, अगर आज आप ये काम कर रहे हैं, मैं कर रही हूँ, या आई सी अ लॉट ऑफ पीपल हू परस्यू देयर पैशन विद द जॉब, स्टेबिलिटी ज़रूरी है। मैंने इंडस्ट्री में आते ही ये काम शुरू नहीं कर दिया, बिकॉज़ व्हेन आई एंटर्ड इन द मार्केट, आई हैड टू अंडरस्टैंड द इंडस्ट्री, आई हैड टू अंडरस्टैंड द ऑर्गनाइज़ेशन कि ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड कैसा है। एक नई चीज़ है ना, पहले आपको उसको समझना पड़ता है। सो इट टेक्स टाइम। उसके बाद जो सेकंड स्टेप है, अगर आप अपनी जॉब में स्टेबल हो गए हैं, ठीक है, जॉब सिक्योर है, फिर आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी आती है, आपकी टीम अच्छी होना ज़रूरी है, आपका मैनेजर, मैं तो हमेशा कहती हूँ लाइन मैनेजर अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, ये ब्लेसिंग है। अगर आपका लाइन मैनेजर अच्छा है ना, तो फिर तो आप किसी की टेंशन ही ना लें। और अगर वो टॉक्सिक है, तो फिर आपको टेंशन ही टेंशन है। सो when you have this is a mixture of a lot of things. When you have a supportive team, you have a stability in your career, then you can pursue your passion. अच्छा, उसके साथ साथ अब लोग कहते हैं टाइम नहीं है, हम कैसे वक्त निकालें? आप घर जाके खाना खाने के लिए भी तो वक्त निकालते हैं ना। मैं ये बात नहीं एक्सेप्ट कर सकती कि कोई इंसान अगर उसको किसी चीज़ का पैशन है, ड्राइव है, एक्साइटमेंट है, वो उस चीज़ को ना कर सके। मैं जब पहले भी जॉब करती थी, सो मुझे कंटेंट क्रिएशन का शौक है, मैं थोड़ा-थोड़ा ही सही, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट यू आर डूइंग बिग एट वन टाइम, स्टार्ट स्मॉल। हफ्ते के 5 दिन आप काम करते हो, सैटरडे संडे है, उसमें अपने पैशन प्रोजेक्ट पे काम करो। आई स्टार्टेड लाइक दिस। आई वाज़ डूइंग सैटरडे संडे ओनली, बट देन व्हेन आई गॉट मोर फ्लेक्सिबिलिटी, तो मैंने इवेंट्स अटेंड करना शुरू किए। मैं वीकडेज़ में भी चली जाती हूँ। बट देन I am managing my work because Alhamdulillah, touch wood, my team is good, my manager is good, और वो स्टेबिलिटी भी आई थिंक आ गई है जिसमें मैं अपना काम और पैशन मैनेज कर सकती हूँ। गुड 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 टू नो दैट। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि आपको सही टाइम का वेट करना चाहिए, बिकॉज ऑल दीज थिंग्स यू नीड सम सॉर्ट ऑफ मनी इन्वॉल्व। ठीक है यार, आई नीड टू क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं यार, ये तो हमेशा घूमती रहती है, और अगर वो हमेशा घूमती रहती है तो उसको उसी फाइनेंस को मैनेज करना है, क्योंकि देयर इज़ लाइक कि अगर मैं यहाँ से यहाँ जाती हूँ, या अगर मुझे कोई नया इक्विपमेंट लेना है, या अगर मुझे किसी को रीच आउट करना है, किसी को कोई भी चीज़ देनी है, इट्स लाइक आहिस्ता-आहिस्ता फर्स्ट यू हैव टू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ एंड देन दिस थिंग विल ग्रो। ठीक है? देखिए, अगर आपके पास जनरेशनल वेल्थ नहीं है ना, तो फिर मेहनत करनी है। ये तो फिर आपसे मेहनत करनी है। डिबेटेबल टॉपिक। देखो, मुझे ऐसा हाँ, लगता है जनरेशन वेल्थ भी अगर मैं बात करूँ ना, जनरेशन वेल्थ को भी ना लोगों को ऐसा लगता है देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिनके पास जनरेशन वेल्थ होती है, उनके पास कोई पर्पस नहीं होता। ठीक है? हाँ, बिल्कुल। ठीक है, इट्स नॉट कि हमने जितने भी देखे हैं, और मैं वही कहता हूँ कि लेट्स डोंट टॉक अबाउट क्या महंगाई हो गई है, क्योंकि सस्ताई जैसी लफ्ज़ कोई नहीं होता। तो हर चीज़ महंगी होगी तो यू नीड टू वर्क ऑन दैट। ठीक है? हो सकता है कि जिसके पास जनरेशन वेल्थ है उसके अलग मसले हों, आपके अलग मसले हों, लेकिन मसले हर किसी के साथ है। दैट गोज़ टू अनदर कि हमने बात कर ली डिसिप्लिन पे। अब डिसिप्लिन से एक और चीज़ ये होती है कि यार, अ लॉट ऑफ पीपल यूजुअली हेजिटेट टू ट्राई समथिंग डिफरेंट। ठीक है? अ लॉट ऑफ पीपल थिंक यार, हमने अगर इस चीज़ में डिग्री करी है तो हम इस चीज़ में स्टिक रहेंगे। ठीक है? मुझे ऐसा लगता है एक्सप्लोरेशन इज़ अप टू यू। डिग्री इज़ नॉट समथिंग कि जिस जो आपके साथ बन गई है, और डिग्री कोई वो नहीं हो सकता, बेंचमार्क नहीं हो सकता कि ये डिग्री के बाद ही मेरी वर्थ बढ़ेगी या कम होगी। ठीक है? यू आर अ फार्मास्यूटिकल स्टूडेंट। ठीक है?
whatever you're doing, फार्मास्यूटिकल के ताल्लुक तो मेरे दूर दूर तक भी नहीं है इसमें, ठीक है। ना पब्लिक स्पीकिंग फार्मास्यूटिकल का पार्ट है, ना कनेक्शन बिल्डिंग फार्मास्यूटिकल का पार्ट है। व्हाई डिड यू चूज फार्मास्यूटिकल, ठीक है। एट व्हाट टाइम यू थॉट कि यार दिस इज नॉट समथिंग दैट आई वांटेड टू परस्यू, ठीक है। हाउ वाज द शिफ्ट, ठीक है, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि हर चीज में ना पाकिस्तानियों का ये होता है, यार ये तो लड़की है इसके लिए आसान होगा, ये तो लड़की है इसके लिए आसान होगा, ठीक है। दैट गोज फॉर एवरीथिंग। आई एम प्रीटी मच श्योर कि बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि यार कैचअप विद आयशा तो इसलिए ज्यादा फेमस है क्योंकि वो लड़की है, ठीक है, और लोग उसको देखना चाहते हैं, वाइस वर्सा, ठीक है। हमारे यहाँ ये वाला जो है ना, अगर किसी की भी हम कोई भी चीज को अच्छा होते हुए देखते हैं पाकिस्तान में, और अगर वो लड़की है तो हमारे पास एक पॉइंट तो ये होता है कि यार ये लड़की, इसके पास प्लस पॉइंट है, ये लड़की है इसलिए शायद इसके मैनेजर ने इसको अलाउ कर दिया है कि भाई तुम चले आओ, हम तो लड़के हैं, ठीक है, ये लड़की है इसलिए इसी लोग इवेंट बुलाते हैं। बट व्हाट एट व्हाट टाइम यू डिसाइडेड कि यार नहीं, फार्मास्यूटिकल इज नॉट समथिंग दैट आई वांटेड टू कंटिन्यू, आई वांटेड टू परस्यू समथिंग एल्स, ठीक है। एंड if anyone is going through that same phase, ठीक है, what are the key pointers that need to be checklist कि यार ठीक है, अगर ये चीजें नहीं हो रही मेरे साथ, या ये चीजें हो रही है मेरे साथ, तो मैं शिफ्ट करूँ। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल करियर चेंज करना, इसमें कोई मसले की बात नहीं है। अपने दिमाग से ना जो भी कोई ये सुन रहा है कॉन्वर्सेशन, इस चीज़ को निकाल दें कि आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं एकेडमिक में एंड यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट एंड यू वांट टू शिफ्ट टू इट, शिफ्ट फ्रॉम इट, इट्स फाइन, इट्स कम्प्लीटली ओके। ये जो प्रेशर होता है ना, मैं जब पढ़ भी रही थी फैमिली फर्स्ट ईयर में 3-4 बच्चे निकल गए और वो चले गए किसी और फील्ड में। आई वाज थिंकिंग कि इनके अम्मा अब्बा ने पैसा लगाया होगा, मतलब इनको इस चीज़ का एहसास नहीं हो रहा, बट यू नो उन्होंने बहुत सही टाइम पे डिसीजन ले लिया। बिकॉज़ मैंने जब 5 साल कंप्लीट कर लिए, उस टाइम में मुझे ये रियलाइज़ होता था दैट आई हैव ड्राइव टुवर्ड्स मार्केटिंग। ठीक है। अब मैं फार्मडी कर रही हूँ क्योंकि ज़ाहिर है 3-4 साल हो गए, इतने पैसे लगाए, आई एम टुवर्ड्स द एंड, आई कैन नॉट क्विट, सो आई कंप्लीटेड इट। मैंने कंप्लीट कर लिया और मेरी फ़ौरन ही जॉब भी लग गई। आई वाज़ वर्किंग एट अ वेरी गुड कंपनी, बट मैं जिस डिपार्टमेंट में थी, ठीक है, वो मैं समझती हूँ मेरे लिए नहीं था। पर उस कंपनी से मुझे एक्सप्लोरेशन, मैंने अपने आप को एक्सप्लोर किया, मुझे मार्केटिंग की ट्रेनिंग्स में काम करने का मौका मिला, मुझे एल&डी की ट्रेनिंग्स में मौका मिला। So I realized that okay, this is me. This is where I belong. You know, so it is okay if you give yourself chance to explore. Even Rumi says, you know, that when you start working, then the path appears. You know, clarity never comes before action. Clarity comes from actions. So it's okay if you are working. It's okay you are exploring. तो मुझे जो realization हुई ना, एक तो पढ़ते पढ़ते ही हुई। जब आप पढ़ रहे होते हैं, आपको पता होता है कि you know, you have that voice from within that you belong here or you don't belong here, और ये होती है सब में। आपको पता होता है क्या किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है। जैसे आपने कहा मुझे एनिमेशन पढ़ने का हमेशा से इंटरेस्ट था। इट एक्साइट्स यू। Similarly, when I see media, when I see creating something, marketing, that excited me. That excites me still. Content creation. So उसके बाद वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई जब मैंने इस चीज़ को डिसाइड कर लिया। अब यहाँ बहुत रिस्क फैक्टर्स होते हैं। आपको लेने हैं कैलकुलेटेड रिस्क, क्योंकि जब आपने इतनी हैवी इन्वेस्टमेंट करके आप पढ़ लिया, बैचलर कर लिया, अब यू नो आपसे पेरेंट्स स्पेशली मेल्स मेल से एक्सपेक्ट किया जाता है कि अब वो पैसा कमा के लाएंगे। घर की जिम्मेदारियाँ होती हैं। वो इतने एब्रप्ट डिसीजन नहीं ले सकते कि मैं जॉब छोड़ दूँ, मैं अपना पैशन परस्यू कर लूँ, मैं ये कर लूँ। नो, इन पाकिस्तान आई बिलीव ये नहीं पॉसिबल बिकॉज़ अ लॉट ऑफ मेल्स हू आर यू नो फ्रॉम मिडल क्लास सोसाइटी, उन पे बहुत प्रेशर है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, आपने जो बात की फीमेल्स की, मुझे लगता है टू सम एक्सटेंट हाँ, एज है, लेकिन नॉट एवरीवेयर। इट्स अबाउट यू, इट्स अबाउट हाउ यू प्रेज़ेंट योरसेल्फ। अब गपशप है, गपशप के होस्ट तो आप हैं ना, और आप मेल है, यू आर फेमस फ्रॉम गपशप। सो समथिंग इज़ इन यू, राइट? सिमिलरली कैचअप इज़ इट्स द स्टाइल, इट्स वो कहते हैं ना एक बात है वो उस इंसान में ही है। तो चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, अगर आप में वो बात है ना, तो आप आगे जाओगे। सो टेक कैलकुलेटेड रिस्क, करियर शिफ्ट करने में कोई मसला नहीं है। हाँ, फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड अभी मैं कुछ नहीं करती, लेकिन क्या पता आगे मैं हेल्थ केयर में कुछ करूँ, मैं कोलैबोरेशंस करूँ। मुझे बहुत शौक है टू सर्व कम्युनिटी, तो हेल्थ केयर तो इज़ वन ऑफ दैट। सो यू नो ऑलवेज़ कीप दैट ग्रोथ माइंडसेट एंड नेवर नैरो योर माइंडसेट। एग्री। आई वांटेड टू ऐड वन थिंग दैट कि आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि कंसिस्टेंसी इज
अ बिग थिंग, ठीक है? इफ यू वांटेड टू ये वही वाली बात है कि लोगों को ग्रोथ चाहिए होती है, लेकिन वो कहते हैं कि यार ये बहुत दूर है तो कौन करेगा? आप अगर थोड़ा करते रहते हैं तो एट 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 सम पॉइंट जब आप पीछे देखेंगे तो आपको पता चलेगा। दैट इज द सेम थिंग व्हाट आई डिड व्हेन आई स्टार्टेड। तो आई वाज लाइक यार पूरे टाइम ये सोचते रहे कि यार इतने बड़े कमर्शियल प्रोड्यूस कर लिए, ठीक है, अब अपनी बारी आई तो यार नहीं, हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए। देन आई रियलाइज कि परफेक्शनेस इज लाइक टाइम के साथ साथ आ जाती है। नो वन इज लाइक, Yes. देयर आर पीपल हु आर जस्ट कमिंग टू मी एंड मैसेजिंग मी ऑन लिंक्डइन एंड देयर लाइक यार आप रिकॉर्ड किससे करते थे? और लाइक यार जस्ट नॉर्मल, मैं थोड़ी सी साइंस लगाता हूँ और इस तरीके की चीजें करता रहा। दे वर लाइक गुड। आई थिंक कंसिस्टेंसी टीच यू अ लॉट ऑफ थिंग्स, सो इट्स आल्सो वन ऑफ द प्रायर थिंग के। और जहाँ तक बात आती है लड़का और लड़की वाली, मैंने पॉइंट इसलिए यूज करा, मैं इसलिए मालूम करना चाहता था क्योंकि ना ये डिबेट बन गई है, और ये डिबेट भी नहीं है, ये बस खामा खाई का ना एक वो चीज है कि लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये चीज से ना लेवरेज हो सकता है। आप Hmm. बहुत सारे यूट्यूबर्स को देख सकते हैं, आप बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर को देख सकते हैं, वो कंटेंट से चल रहे हैं, ठीक है? इरफान जुनैद जो लड़की नहीं है, वो कंटेंट से चल रहा है। तो आपको That's what I'm saying. That's आपको what I'm saying. आपको जो चीज बेचनी है, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम तक लगातार कर सकते हो, क्योंकि एक वक्त के बाद और मैं आपको एक बात बताऊँ, अगर ये लड़का-लड़की की बात होती है और दिन डिबेट होती है तो कॉन्स भी है इस चीज़ के। अगर आप देखें हैरेसमेंट केसेस सबसे ज़्यादा फिर किसके साथ होते हैं, ठीक है? ज़्यादा कॉशियस किसको रहना पड़ता है? लड़कियों को ही रहना पड़ता है ना। तो अगर आप ये कह रहे हो कि लड़कियों को बहुत एज है और लड़की मतलब इट्स अ गर्ल सो शी विल गेट द फेम, नो। इट्स अबाउट द कंटेंट। अगर आपके कंटेंट में दम है, अगर वो आपकी इट्स एन इंटेंशनल कंटेंट, इट्स सर्विंग सम पर्पस एंड इट्स रिलेटेबल, तो ही लोग आपको लाइक करेंगे, वरना सेलिब्रिटीज़ भी, फीमेल हीरोइन्स भी फ्लॉप हो जाती हैं। क्यों? नेपो किड्स आ रहे हैं, सब हिट हो जाए ना। डिबेट डिबेटेबल टॉपिक, सही बात है, बात तो ठीक है बिल्कुल कि यार ये जरूरी नहीं है। लेट्स ड्राइव दिस टॉपिक फ्रॉम व्हाट द पॉइंट कि यार कंसिस्टेंसी तो चाहिए, ठीक है। अब एक चीज आ जाती है कि यार सही है, पैशन फॉलो करना है, डिग्री चेंज करने में भी मसला नहीं है। डिग्री होने के बाद व्हाट आई सी अ लॉट ऑफ पीपल यूजुअली डोंट हैव एनी रोड मैप, ठीक है। हुँ, मिलीनियल्स शायद जब हम पेरेंट्स बनेंगे तब तो शायद चीज़ें थोड़ी चेंज होंगी, क्योंकि हम इंडस्ट्री को बहुत अलग तरीके से देखते हैं। मुझे ऐसा लगता है अगर मैं हमारी बात करूँ, तो हमारे साथ ऐसा हुआ था कि उस वक़्त करंट सिचुएशन में जो चीज़ सही थी, तो लोगों ने कहा यार ये चीज़ कर लो, ठीक है? और बच्चों ने वो चीज़ कर ली, कभी-कभार प्रेशर में कर लेते हैं, कभी-कभार उनको लगता है कि यार उनके अम्मा-अब्बा सही कह रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी डिबेट है कि यार ज़रूरी नहीं है जो आपके अम्मा-अब्बा कहें वो सही है। हो सकता है उनके टाइम फ्रेम के हिसाब से वो चीज़ सही हो, लेकिन आने वाले 10 साल में वो चीज़ मतलब एक तरीके से खत्म हो जाए, ठीक है? अब आप ग्रेजुएट तो हो जाते हो किसी भी तरीके से, क्योंकि दिस इज़ व्हाट आई बिलीव कि आप एक मतलब यूनिवर्सिटी में जाते हो तो आप 5 साल, 4 साल, 6 साल जितने साल बाद भी ग्रेजुएट होके ही निकलोगे, जिस भी सीजीपीए पे निकलो, ठीक है? बट व्हाट आर द राइट स्टेप्स बिफोर और आफ्टर यू ग्रेजुएट? ठीक है, आप मार्केट के अंदर आते हो, आप यूनिवर्सिटी के अंदर एक बबल में रहते हो, ठीक है? और हुँ, आपके लिए तो ये बिल्कुल मुश्किल इसलिए था क्योंकि आपने तो डिग्री कोई और करी, उसके बाद शिफ्ट करा, लेकिन आप आई एम प्रीटी मच श्योर यू यू मीट अ लॉट ऑफ पीपल एंड आई थिंक यू हैव दैट थिंग कि यूनिवर्सिटी में ना आपको एक बबल में रखने की आदत होती है। लोगों को लगता है कि ये जो 30-40 लोग मेरी क्लास में, मुझे इसमें ही एस करना है, मेरे इसमें अगर ग्रेड्स अच्छे आ रहे हैं, मेरी सीजीपीएस अच्छी आ रही हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी से बाहर निकलते हो, आप रियल लाइफ में आते हो और आपको पता चलता है ओके फाइन, दिस इज अ 360 शिफ्ट, मुझे तो कुछ भी नहीं पता, ठीक है। देयर आर पीपल जिनकी जॉब्स लग जाती हैं 2 महीने में, और आई एम प्रीटी मच श्योर देयर आर, आई नो अ लॉट ऑफ पीपल उनके पास 4.0 जीपीए और 3.9 3.8 सी जीपीएस है, और वो अभी तक नौकरी ढूंढ रहे हैं पाकिस्तान में, ठीक है। हुँ, क्योंकि पाकिस्तान का इकोसिस्टम, पाकिस्तान का जॉब मार्केट, ठीक है, हर चीज अलग चल रही है। सही है, हम लिंक्डइन पे हर चीज जो देख रहे हैं मुझे नहीं लगता कि वो सही है। everyone is trying to showcase how they really wanted to showcase their self, जरूरी नहीं कि वो इंसान हुँ, वैसा भी हो। तो जब आप ग्रेजुएट होते हो, आपको क्या लगता है कि यार अभी के हिसाब से 2025 के हिसाब से एक ग्रेजुएट स्टूडेंट के पास ये की फैक्टर्स होने चाहिए डिग्री के साथ साथ? क्योंकि देखो कम्युनिकेशन बिल्डिंग बहुत जरूरी है, लोग आपको हुँ, जानते हो बहुत जरूरी है। आपको, अगर मैं एक सिंपल सी बात करूं, देयर इज अ कॉन्वर्जेशन that I was doing with a recent graduate, और मैंने उससे पूछा कि what do you want to do after graduate, and he was like I will doing this। तो मैंने कहा प्लान क्या है? हुँ, मतलब पता नहीं, तो मैंने कहा जब प्लान प्लान कैसे करोगे आप, मतलब
ये वो वाली बात है ना, जब बचपन में हमसे पूछते थे बड़ों के क्या बनोगे, हम कहते थे हम फौज में जाएंगे, हम डॉक्टर बनेंगे, बट हमारे पास कोई प्लान नहीं होता था। ठीक है, 9 मैट्रिक में आते आते पता चल गया कि भाई फौज में जाना बहुत मुश्किल है, डॉक्टर बनना बहुत मुश्किल है, तो कोई सही चीज ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन किसी का प्लान नहीं है, रोड मैप कैसे सेट करेंगे। ठीक है, डू यू थिंक कि हमारे पास लोगों के पास राइट मेंटोरशिप होती भी है? क्योंकि अब जाके मैं देखता हूँ कि लोग इंडस्ट्री प्रोफेशनल बोलना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो डिस्कस करें, वो लोगों को नॉलेज दें। ठीक है, लेकिन जो बच्चा ग्रेजुएट हुआ है उसके पास राइट पाथ में क्या है? आपको क्या लगता है कि किस तरीके से लोगों को, बच्चे को अपने ऊपर मेहनत करनी चाहिए? ओके, पूरा सवाल मैंने सही से सुना है ताकि मैं रिस्पॉन्ड कर सकूँ। ओके, सो द थिंग इज़ मैं देखिए देयर इज़ नो सेट रूल बिकॉज़ नॉट एवरीथिंग वर्क्स फॉर एवरीवन। सबकी अपनी जर्नी है, सबका अपना करियर है, सबकी अपनी एकेडमिक्स है। इवन अगर शारा फैसल पे भी 10 गाड़ियाँ चल रही हैं ना, सबकी मंज़िल अलग-अलग है। राइट? अच्छा, अब बात करते हैं पहले यूनिवर्सिटी में बिफोर ग्रेजुएशन। मार्केट इज़ एक्सट्रीमली कम्पिटिटिव एंड हाइली सैचुरेटेड, ये हम सबको पता है और टेक से भी इतना है ज़माना कि अब तो एआई, इट्स एवरीथिंग इज़ एआई, ठीक है? आपने मैं ये कहती हूँ आप इंटर्नशिप्स करें, एज़ मेनी इंटर्नशिप्स एज़ यू कैन। इससे होगा क्या? आपको चाहे ये पता चले या ना चले कि आपको कहाँ जाना है, पर ये पता चल जाएगा कि आपको कहाँ नहीं जाना। जब आप इंटर्नशिप्स करते हैं ना तो यू विल गेट, हाँ, हो सकता है बहुत इनसाइड आपको ना पता चले अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, बट आपको इंडस्ट्री समझ आ जाती है। व्हाट काइंड ऑफ वर्क आई एम डूइंग, हाँ, शायद मेरा मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, मेरा एचआर में इंटरेस्ट है। इंटर्नशिप्स ए। बी, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। कितने स्टूडेंट्स हैं दे फेयर पब्लिक स्पीकिंग, बहुत अच्छा बच्चा है, टैलेंटेड है, पर बोल नहीं पा रहा, इंटरव्यू में नहीं बोल पा रहा। इंटरव्यू चलो किसी तरह क्लियर कर लिया, वर्क प्लेस पे उसमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि वो किसी तरह अपने आप को प्रूव करे। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इज सो इम्पॉर्टेंट। मैं एक टेक टॉक्स में गई थी, अब वहाँ पे ना उन्होंने लाइव एक कंपटीशन कराया, दे कॉल के एंटरप्रेन्योर्स आ जाएं और अपना वहीं पर पिच करें, अपनी पिच एलिवेटर पिच करें। तो 10 लड़के आए और 1 लड़की आई ऑडियंस में से। अच्छा, हम देख रहे हैं वो पिच कर रहे हैं। जब उन्होंने पिच करना स्टार्ट किया, ठीक है, तब 2 और लड़कियाँ उठ के आईं और फिर 2 और लड़कियाँ उठ कर आईं। तो आप समझ रहे हैं कि हमारे पास टैलेंट है, इवन वुमेन इन एंटरप्रेन्योर्स, वी हैव अ लॉट ऑफ वुमेन इन एंटरप्रेन्योर्स, बट कॉन्फिडेंस नहीं है। क्यों? डर होता है लोग जज करेंगे। ये चीज़ें टीचर्स को इनकलकेट करनी है स्टूडेंट्स में विद इन द क्लासेस, वाया प्रेजेंटेशंस, वाया प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स, बिकॉज प्रैक्टिकल लाइफ इज एक्सट्रीमली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी स्टडी इन थ्योरी। तो मैं समझती हूँ करिकुलम को डिज़ाइन इस तरह कराया जाए, और बहुत से ऐसे टीचर्स अच्छे हैं जो आपको बहुत प्रैक्टिकली पढ़ाते हैं। प्रैक्टिकली पढ़ मतलब थीसिस प्रोजेक्ट्स ऐसे होंगे जिसमें आपको प्रेजेंटेशन देनी है, वो पुश करेंगे। देखिए, एक उस्ताद जो होता है ना, माँ-बाप के बाद उस्ताद वो सबसे ज़्यादा अच्छे से जानता है बच्चे को। तो उसको पता होता है कि ये बच्चा कहाँ उसमें गैप है, कहाँ उसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। सो स्टूडेंट अपने आप से भी अपनी लर्निंग पे वर्क करें, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करें, एमयूएन्स अटेंड करें, जो-जो चीज़ें उनको लगता है कि उनकी पर्सनल ग्रूमिंग कर सकती हैं, वो करिए। ऑल्सो इंटर्नशिप्स तो करें ही, साथ-साथ इंडस्ट्री को एक्सप्लोर करें। आपके पास एआई है, सर्च करें। किसी करियर में जाने से पहले अपने आप को इवैल्यूएट करें, व्हाट आई एम गुड एट। मेबी समवन इज़ नॉट गुड एट मार्केटिंग, दे आर नॉट कंफर्टेबल विद स्पीकिंग, पर वो आईटी में बहुत अच्छा हो, टेक्निकल वर्क में बहुत अच्छा हो। सो एवरीवन हैज़ वेरी यूनिक आई वुड से स्किल। सो अपने स्किल को अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया ना, फिर तो आपकी विन ही विन है। क्योंकि एक स्किलफुल इंसान को ना वर्क प्लेस पे भी कोई हिला नहीं सकता। क्योंकि अगर आपके पास स्किल है, ठीक है, तो आपकी ज़रूरत है कंपनी को, आपको नहीं है फिर। इफ़ यू वर्क ऑन योर स्किल। अच्छा, अब तो ये हो गया बिफोर ग्रेजुएशन। अब आप ग्रेजुएट हो गए और आप कंपनी में जा रहे हो। यूजुअली क्या होता है कि जो अपॉर्च्युनिटी आए ले लो, क्योंकि एक बैच से 100 बच्चा निकल रहा है, 10 यूनिवर्सिटी है, 10 यूनिवर्सिटी में हर बैच में अगर 100 स्टूडेंट्स हैं तो कितने था 10th स्टे हो गए। हाँ, 1000 बच्चे एक साथ, ये तो मैं बहुत बहुत कम नंबर बता नहीं, रही वो हूँ, ठीक बहुत है। कम है, मेरे ख्याल से 5-6 हज़ार प्लस बच्चे हर 6 महीने में ग्रेजुएट हो रहे होंगे। सही है, अब इतना वर्कफ़ोर्स अगर आ रहा है, यंग वर्कफ़ोर्स आ रहा है, तो अपॉर्च्युनिटीज़ कहाँ है इतनी? कंपनीज़ तो अपना फ़िल्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ ज रिक्रूटमेंट और स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट किए जा रही हैं कि हमें जेम्स ही चाहिए।
अगर सब जेम्स ही उठा लेंगे, तो फिर वो सारे बच्चे कहाँ जाएँगे? सो वी हैव टू बैलेंस दिस एम्प्लॉयमेंट रेशियो एज़ वेल। तो अब क्या होता है, आप कोई भी जॉब ले लेते हैं, जब आप कोई भी जॉब ले लेते हैं, तो आपने अपनी पढ़ाई के साथ तो जस्टिस किया ही नहीं, ठीक है? अच्छा, दिस इज़ ऑल्सो फाइन टू लर्न विद वर्क। लेट्स सपोज़ लकी आर दोस्त जो पढ़ने के साथ ही उनको वो जॉब मिल जाए जो उन्होंने पढ़ा हो। बट अगर लेट्स सपोज़ आप कुछ और काम भी कर रहे हैं जो आपने नहीं पढ़ा, इट्स ओके। आई हैव सीन पीपल एट लीडरशिप पोज़ीशन जिन्होंने इंजीनियरिंग पढ़ा था, वो मार्केटिंग के हेड बन गए। जिन्होंने कोई और चीज़ फ़ील्ड पढ़ी थी और वो फार्मा में चले गए, मेडिकल में चले गए। सो इट्स ऑल अबाउट आफ्टर ग्रेजुएशन जो आपकी स्किल्स होती है ना, आपकी टीम मैनेजमेंट स्किल, आपके टाइम मैनेजमेंट स्किल, हाउ कैन यू सर्वाइव इन द कंपनी? हुँ। वो स्किल्स, वो आपको टेक्निकल स्किल्स कंप्यूटर से नहीं आएँगी। यू हैव टू लर्न दैट, वो आपको एक्सपीरियंस से आएँगी। सो बिफोर ग्रेजुएशन आपने वर्क करना है अपने टेक्निकल स्किल्स पर, आफ्टर ग्रेजुएशन आपने वर्क करना है अपने सॉफ्ट स्किल्स पर। गुड इनफ। दैट कम्स टू अनदर फेज़ कि यार अभी आप कह रहे थे कि हर बंदे को ना हर हर कंपनी को ना अच्छे अच्छे बंदे ही चाहिए, ठीक है? और ये बात बिल्कुल ठीक है कि यार इट्स अ वेरी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट राइट नाउ कि अगर आप शायद 0.1% भी किसी से कम हो गए तो आप शायद नेग्लेक्ट किए जा सकते हो, ठीक है? दैट कम्स टू अ पॉइंट कि हमारे यहाँ ना लोग ना अपने कंफर्ट ज़ोन में रहना चाहते हैं, ठीक है? आई सी पीपल हू आर वर्किंग फॉर XYZ इंडस्ट्री for more than 5 years and they're like, ठीक है यार, we are decent enough, ठीक है? And I see a lot of people who are switching frequently 2-3 years में एक आध बार and they are growing potentially, ठीक है? दूसरी ये चीज़ होती है कि टूल्स जो है ना वो आपको एक वक़्त तक लेके जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों के अंदर फ़र्क सिर्फ़ इतना होता है कि एक बंदा अपने टूल्स, अपने स्किल सेट पे ही काम कर रहा होता है। क्योंकि ग्रोथ सिर्फ़ स्किल सेट नहीं है। अगर मैं बात करूँ अग एज़ अ डिज़ाइनर, ठीक है? इन पाकिस्तान डिज़ाइनर की जॉब जो है वो व्हाइट कॉलर नहीं है। आप पत्थर उठाओ, पाकिस्तान के अंदर एक डिज़ाइनर और एक वीडियो एडिटर फ्री में मिलता है, ठीक है? यू पुट अ पोस्ट 10 डिज़ाइनर 10 वीडियो एडिटर एक के साथ एक फ्री की डील चल रही होगी, ठीक है? यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एक पॉइंट के बाद आपको ये रियलाइज़ होता है कि आपको अपने वो स्किल्स सीखने हैं, अपने वो स्किल्स को ग्रूम करना है जिससे आप ग्रो करोगे, ठीक है? जिसमें टीम टीम मैनेजमेंट होता है, लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं, आप किस तरीके से वर्क वर्क एनवायरनमेंट में किस तरीके से जाते हो। ठीक है? एग्ज़ैक्टली। आप क्या कपड़े पहन के जा रहे हो, किस तरीके से बात करो, किन लोगों से मिल रहे हो क्योंकि एवरीथिंग ग्रोज़। अ कंपनी नॉट इन्वेस्ट ऑन योर टूल्स कि हाँ भाई ठीक है, आप बहुत अच्छे डिज़ाइनर हो, आप बहुत अच्छे XYZ काम आता है, आपको हम प्रमोशन देते हैं। लोग इसको भूल जाते हैं, ठीक है? अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकलना ज़रूरी है। डू यू थिंक यार इसके इसमें ना एक और चीज़ होती है व्हाट आई सी इज़ कि लोग ना ये चीज़ भूल जाते हैं कि कंपनी और आपके बीच में ना एक डिफरेंस है। कंपनी आपको पैसे दे रही है, आप उतना कंपनी के लिए काम कर रहे हो, उसके बाद आपकी भी लाइफ है। लिंक्डइन पे मैं देखता हूँ, लोगों ने कंपनी को ही सब कुछ बनाया हुआ होता है। कवर कंपनी का, प्रोफाइल पिक्चर कंपनी की, ब्रांडिंग कंपनी का, ईद की पोस्ट है मंथ कंपनी की, व्हाट्सएप के स्टेटस कंपनी के। उनको ऐसा लगता है कि वो कंपनी और कंपनी हुआ है और उसके बाद जिस दिन उनका ले ऑफ होता है, जिस दिन उस कंपनी से निकलना है, वो लोग होते हैं जो सबसे पहले बोल रहे होते हैं। हाउ डू यू थिंक ए पर्सनल ब्रांडिंग विल चेंज दिस थिंग? ठीक है। मुझे पता है, आपको पता है बहुत सारे लोग हैं और अब 2025 में जाके 2 साल पहले से अब काफ़ी पर्सनल ब्रांडिंग बहुत सारी इम्पोर्टेंट हो गई है। अच्छा पर्सनल ब्रांडिंग में भी ना एक बहुत बड़ा मिथ है। लोगों को ऐसा लगता है कवर अपडेट कर दो, प्रोफाइल पिक्चर अपडेट कर दो, पर्सनल ब्रांडिंग, ठीक है। हाउ डू यू थिंक कि अगर आपको ग्रो करना है तो उसमें ये पर्सनल ब्रांडिंग वाला पार्ट कितना हेल्प कर सकता है? आप पर्सनल ब्रांडिंग को बेसिकली कहते क्या हो? कि यार कवर को अपडेट करना, प्रोफाइल पिक्चर को अपडेट करना पर्सनल ब्रांडिंग होती है, इसके अलावा भी और पार्ट्स हैं और किस तरीके से वो चीज़ आपकी ओवरऑल ग्रोथ में ऐड कर सकती है? ओके। अच्छा, सबसे पहले ना जो ग्रोथ ज़ोन की हमने बात की और कम्फर्ट ज़ोन की आपने बात की, उसके बीच में जो ज़ोन है ना, वो है फेयर ज़ोन। हुँ। आधे से ज़्यादा लोग फँसे हुए हैं फेयर ज़ोन में। कम्फर्ट से तो निकलना शायद चाह भी रहे हों, पर फेयर ज़ोन के बाहर बहुत ही कम परसेंटेज है जो निकलता है, और जो फेयर ज़ोन से बाहर निकलते हैं ना, जो क्रॉस करते हैं, वो जाते हैं ग्रोथ ज़ोन तक। So हुँ। first of all, it's very important, if you have this mind that I have to grow and I have to do something for myself and for the people, तो आपने फेयर जोन को छोड़ना होगा। फेयर जोन में कौन क्या सोच आती है?
लोग क्या कहेंगे? देखिए, आप कुछ नहीं करेंगे, हम बस ऐसे बैठे रहें, कुछ ना बोलें, लोग तब भी कुछ कहेंगे। लोगों का तो काम है कहना ना, लोगों लोगों का का तो काम काम है है ना कहना। कराओ। देखिए, वो तो अपना जॉब बिल्कुल सही कर रहे हैं, वो अपने जॉब में नहीं चूक रहे। तो आप क्या कर रहे हैं? सो आप चाहे अच्छा करें, आप बुरा करें, लोग कहेंगे, लेकिन द पॉइंट इज़ दैट फेयर ज़ोन को जब आप क्रॉस करते हो ना, तब आप पहुँचते हो ग्रोथ ज़ोन में। अब ग्रोथ ज़ोन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो पर्सनल ब्रांडिंग की हम बात करते हैं, आई थिंक बेशुमार ट्रेनिंग्स होती हैं और मुझसे तो बहुत बड़े-बड़े ट्रेनर बैठे हैं जो इस पे बात कर सकते हैं। मैं अपना पर्सपेक्टिव बताती हूँ। हम सब पैदा होते हैं, हमारा नाम होता है ना एक, वो हमारी आइडेंटिटी है। आयशा यूसुफ, उमैर अली, ये आपकी आइडेंटिटी है, कितना ज़रूरी है। अब आयशा यूसुफ के नाम नाम तो आयशा यूसुफ है, पर मैं सेल किसी और को करना शुरू कर दूँ, किसी और के प्रॉपर्टीज़, सही? तो ये कितना अजीब-सा लगेगा कि आयशा यूसुफ क्या है फिर? अगर आयशा यूसुफ ह लोग आयशा यूसुफ को जानना चाहेंगे या उमैर अली को जानना चाहेंगे, ठीक है? आप अगर गपशप कर रहे हो, तो आप यहाँ पे अपनी डिज़ाइनिंग को नहीं बेच रहे, या जितनी कंपनीज़ में आपने काम किया, आप उसको सेल नहीं कर रहे। You are a brand. Now people know you Umair Ali from Gupshup. This is something that you have built. ठीक है? तो पर्सनल ब्रांडिंग जो है ना, वो यही चीज़ है, इट्स नॉट जस्ट योर टाइटल, इट्स अबाउट हाउ पीपल रिमेंबर यू। ठीक है? इसकी एक छोटी सी एग्जांपल है, जुनैद अकरम को ले लेते हैं, बड़े फेमस है माशाल्लाह। अब जुनैद अकरम को वैसे ही इज़ अ कॉमेडियन, बट ही इज़ नोन फॉर हिज यू नो हिज वॉइस, हिज सोशल अवेयरनेस एंड हिज द वे ही स्प्रेड द अवेयरनेस एंड हिज रिलेटेबिलिटी। ठीक है? उनके बोथ ओपिनियंस, चाहे लोगों को उनका टाइटल याद रहे ना रहे, बट पीपल रिमेंबर हिज टोन, हिज वॉइस, पीपल रिमेंबर हिम, राइट? सिमिलरली वी हैव अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स। सो पर्सनल ब्रांडिंग के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, सिर्फ कवर अपडेट कर देना बिल्कुल भी नहीं है। इट्स अबाउट हाउ यू मेक योर ब्रांड इंटेंशनल। जितना आप रियल होंगे, ऑथेंटिक होंगे, लोग आपसे रिलेट करेंगे। कपिल शर्मा और ताबिश आशनी को देख लें यार, मतलब कहाँ से स्टार्ट किया, सिर्फ मैं कहूँगी ओरिजिनैलिटी और ऑथेंटिसिटी, अनअपोलोजेटिक ऑथेंटिसिटी। पीपल कनेक्ट, लोग कनेक्ट करते हैं, लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं आपका टैलेंट आपको। अब आपने ना, पर्सनल ब्रांडिंग इज अबाउट हाउ यू वांट पीपल टू परसीव यू। लोग मुझे कैसे देखना चाहते हैं? मैं लोगों के माइंड में, पीपल विल ओनली नो हाउ हाउ मच वी चूज टू टेल देम। उनको नहीं पता चलेगा उससे ज़्यादा। जितना आप उनके दिमाग में फीड करेंगे अपने बारे में, उनको आपके बारे में उतना ही पता चलेगा। सो नाउ फर्स्ट यू हैव टू नो योर सेल्फ, सेल्फ अवेयरनेस, आप क्या हैं और आप चाहते क्या हैं? पहले डिसाइड करो चाहते क्या हो ज़िंदगी से। एक चीज़ को पकड़ो, उसी चीज़ को लेके चलो, राइट? हम अगर ज़ैद अली को देखें, उन्होंने अपनी वीडियोज़ जैसे स्टार्ट में बनाना शुरू की, पीपल स्टार्टेड टू रिलेट विद दैट कि यार वो दुपट्टा लेके, और एक एक उनका एक वो ट्रेडमार्क ही बन गया। अब लोग उसी से उनको जानने लगे। पहले एक चीज़ में एक्सपर्ट हो जाओ, फिर दूसरी चीज़ को ट्राई करें, बिकॉज़ व्हाट पीपल डू अ लॉट ऑफ टाइम, दे जस्ट हॉप। ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं। हर चीज़ से आपका ब्रांड नहीं बनेगा। ब्रांड तो एक ही चीज़, पहले आप अपने आप को आइडेंटिफ़ाई करें। एक और चीज़, कल भी मैं एक इंटरव्यू में थी, तो वहाँ मुझसे स्टूडेंट्स थे, वो कम्युनिकल के, तो वो कहने लगे 20 और 21 इयर्स के, कि वो बच्ची मुझसे पूछने लगी कि मुझे इंस्टा पे कुछ ना पोस्ट करना है, पर मुझे समझ नहीं आता, मैं कैसे अपनी ब्रांडिंग करूँ? तो मैंने कहा देखो, पहले आइडेंटिफ़ाई करो कि इंस्टा पे तो बहुत सारे तरीके के कंटेंट क्रिएटर्स हैं। आप किस नीश में फ़ॉल कर रहे हो? आपका टैलेंट क्या है? किस चीज़ को आप प्रमोट करना चाहते हो? आप क्या चाहते हो? लोग आपको क्या बोलें, शी इज़ अ कॉमेडियन? लोग आपको बोलें शी इज़ अ एजुकेशनिस्ट? मतलब आप कैसे अपने आप को दिखाना चाहते हो? सो उस चीज़ को फ़ोकस करो एंड देन स्टार्ट पोस्टिंग। व्यूज़ आएँगे, सब चीज़ें, एक आपकी वीडियो चल जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। बट फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई योरसेल्फ एंड देन स्टार्ट पोस्टिंग इन दैट मैनर। वो तरीका, स्टोरी टेलिंग का तरीका है। मुनीमा मज़ारी जो हैं, उनकी वैसे तो वो आर्टिस्ट हैं, लेकिन उनकी स्टोरी रेज़िलियंस की है। वो फ़ेमस उस चीज़ से हुई हैं। सो स्टोरी टेलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप अपने आप को किस तरह से लोगों के सामने पोर्ट्रे करते हो। जब मैं उस रूम में नहीं हूँ, तब लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, वो मेरी पर्सनल ब्रांडिंग है। Fair enough, fair enough. It's I feel that I think you give a different perspective to it. लोगों को ऐसा लगता है कि पर्सनल ब्रांडिंग इज विजुअल, ठीक है? पर्सनल ब्रांडिंग इज नॉट विजुअल। पर्सनल ब्रांडिंग इज समथिंग कि आप किसी से मिलो और जब आप चले जाओ, तो वो आपके बारे में क्या थॉट प्रोसेस रख सकता है, जैसा भी आपने बोला, या नो मैटर व्हाट, कि अभी जुनैद अकरम की बात हुई, इरफान यूनुस की बात हुई, कि
आई एम प्रीटी मच श्योर कि वो जो काम कर रहे हैं उनको नहीं पता कि यूएई में उमैर बैठा हुआ है, कराची में आयशा बैठा है, वो हमारे बारे में बात करे, बट उन्होंने वो काम कंसिस्टेंसी से करा है बहुत टाइम तक। तो लोगों को पता है कि यार ये एक चीज है जो रिलेट करती है। अच्छा, दूसरी चीज अभी आपने एक और हाईलाइट करी थी, किताबी शास्त्र और कपिल शर्मा, इसके अंदर एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ भी करोगे ना, लोग आपको बोलेंगे तो कॉपी है। Yeah. जब मैंने स्टार्ट करना था, तो मैं ही सोच रहा था यार कि मैं ये स्टार्ट करूंगा, लोग बोलेंगे सब कर रहा है यार, तेरे में अलग क्या है। ठीक है, तो मैंने बोला भाई सबको इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझे भी इन्फॉर्मेशन चाहिए। आधे से ज्यादा तो ऐसा होता है कि मुझे पता चल जाता है कि यार ये गेस्ट स्पीकर अच्छा है, इन्होंने बुलाया था, तो यार मैं भी कोशिश करता हूँ कि मैं उनको बुला के कोशिश करूँ, और कोशिश करता हूँ कि जो मैंने उनसी चीजें सीखी दूसरी पॉडकास्ट में, अपनी पॉडकास्ट में, अपने सेशन में कुछ और चीजें पर डिस्कस करूँ। तो पीपल विल से, जो आपने कहा था ना कि लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, डोंट वरी अबाउट दैट, स्टार्ट डूइंग थिंग्स ऑन योर ओन, स्टार्ट विथ समथिंग। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आप, जहाँ से बात शुरू हुई थी कि हम पैदा हुए हैं 9 to 5 के लिए नहीं, हमें कुछ ना कुछ अपने बलबूते पे करना चाहिए, और अपनी सेल्फ रियलाइजेशन और अपने चेक पॉइंट्स बनाने चाहिए कि 1 साल बाद मैं अपने आप को यहाँ देखना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने आपने कहा ना मेरे में अलग क्या है, मेरे में अलग मैं है, वो अलग है। गुड 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 जॉब यार, मुझे बड़ा अच्छा लगा, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने कहा कि, क्योंकि ना हर बंदे को होता है कि यार मैं उस जैसा बन जाऊं। ठीक है, नहीं। एवरीवन वांट्स टू बी लाइक, आई वांटेड टू बिकम जेफ बेजोस, आई वांटेड टू बिकम मार्क जकरबर्ग, आई वांटेड टू बिकम XYZ। भाई आप जो हो, आप वो बनो, वो भी। मैं देखिए इस चीज पे बिलीव रखना बहुत जरूरी है कि मैं खुद एक ब्रांड हूँ। देखिए जब तक आप बिलीव नहीं करेंगे ना मैं ब्रांड हूँ, कोई आप पे बिलीव नहीं करेगा। मुझे हमेशा से, मैंने अपने आप से कहा आयशा यू आर अ ब्रांड। हालांकि तब तो मैं इतनी कंफ्यूज, स्टूडेंट लाइफ, मतलब ऑफिसेस जा रहे हैं, कुछ कैचअप विद आयशा नहीं, बट पता नहीं क्यों आई ऑलवेज टोल्ड माई सेल्फ यू आर अ ब्रांड। तो वो जब आपको फेथ होता है ना कि मैं ब्रांड हूँ, तब आप ब्रांड बनते हैं। गब्बर में कहता है ना कि आई एम अ ब्लडी ब्रांड। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, ये बात है कि आप जब चीज को खुद ओन करोगे ना, तो अच्छा लगेगा। ठीक है, और दूसरी ये चीज होती है कि अगर आपको लगता है, ये वो वाली चीज है जो कॉमेडियंस कहते हैं ना, कि सबसे पहले अपना मजाक उड़ाना शुरू करते हो तो लोग अपना मजाक में उड़ाते हैं। तो अगर कोई आपके जैसा, अगर मेरे पास लोग मुझे, आई एम प्रीटी मश्योर आपके साथ भी वो होगा कि पाकिस्तान के अंदर ना, मैंने ये चीज देखी है, आपको पॉजिटिव में देखने वाले लोग कम होते हैं, जो आपको एक अपने टाइम से बाहर निकल के मैसेज करें कि आयशा यू आर डूइंग अ गुड जॉब। यू डोंट नो कि वो कितना आपको मदद करता है यार। आपको कोई बंदा ऐसे ही मिले, आपको कोई ऐसी बंदा मिले, वो बोले कि यार आई सी योर कंटेंट, आपका कंटेंट अच्छा है। मैंने कहा ठीक है यार, सही है, एक बंदे ने तो बोला, इसी तरीके से ग्रोथ है। हाँ। तो लोगों को चाहिए कि भाई अपने आप को रिस्पेक्ट करें, अपनी रिस्पेक्ट करें, और जो काम करें, अगर आपको लगता है ना कि यार, मेरे पास लोग आते हैं वो कहते हैं यार आप ये कर लो, आप ये वाला कैमरा यूज कर लो, मैंने कहा मुझे पता है, दिस इज नेट प्रैक्टिस, राइट नाउ आई एम डूइंग माई नेट प्रैक्टिस। यू नेवर नो कि अगला स्टेप क्या होगा। ठीक है, मैंने जब स्टार्ट, मैं काफी लोगों से मिला, वो कहते हैं यार कि कोई नहीं देखता, लोगों को अच्छा पॉडकास्ट चाहिए, लोगों को अच्छी लाइट्स, अच्छा कैमरा चाहिए। मैंने कहा जिसको सुनना होगा वो सुनेगा, जिसको नहीं सुनना होगा वो नहीं सुनेगा। अगर मैं चाहूँ तो मैं अच्छा पॉडकास्ट सेटअप कर लूंगा, बट व्हाट इफ यार, अगर मैं इतनी इतनी मेहनत करना, Exactly. पहले मुझे, क्योंकि मैं, आई एम प्रीटी मश्योर कि आप कोई बचपन से कैमरे के सामने नहीं रहे हो। ठीक है, जब आप पहली मरतबा कैमरे के सामने आते हो, ठीक है, मुझसे लोग बोलते हैं कि यार कैसे कर लेते हो। मैंने कहा भाई मैं अपनी पहली वीडियो देखता हूँ, मैं ऐसे के पागल हो जाऊंगा कि मैंने करा क्या था। ठीक है, लाइट अजीब सी होती है, और आपको समझ में नहीं आ रहा तो किस तरह बात करनी है, इधर देखना है, इधर देखना है, क्या बोलना है, कॉन्वर्सेशन किस तरीके से करनी है। बट आहिस्ता आहिस्ता मुझे ऐसा लगता है, आप अपने आप को 1 1.5 साल दो, नेट प्रैक्टिस करो, तो आप 1 1.5 साल में ना परफेक्ट हो जाते हो उसके लिए। हाँ, फिर एक एंड डेढ़, ऑल्सो चेंज स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन। जैसे आपने कहा ना कोई कॉम्प्लीमेंट करता है तो अच्छा लगता है, ठीक है, बट ये रेसिप्रोकेट होता है। जैसे कभी कभी क्या होता है, आई मेक श्योर कि कोई कंटेंट क्रिएटर है मेरे सर्कल में या कोई कुछ काम कर रहा है, मैं ना एक मैसेज छोड़ती हूँ, वाह यू आर डूइंग ग्रेट, क्योंकि मुझे पता है कि उसको ये पढ़ के शायद वो आज डिमोटिवेटेड हो, कितनी मोटिवेशन आएगी। और वो चीज़ रेसिप्रोकेट होती है, मैं लोगों से एक्सपेक्ट नहीं करती। फिर क्या होता है, आई डू गेट मैसेजेस, कभी ऐसा होता है मैं डिमोटिवेटेड हूँ, मुझे एक रैंडम मैसेज आ गया, सो दिस यूनिवर्स अलाइंस विद यू, यूनिवर्स प्ले गुड विद यू व्हेन यू डू गुड। सो दिस चेंज नीड्स टू स्टार्ट फ्रॉम विद इन। अगर हम सब ये सोच रखें और सब एक दूसरे के लिए सोचें, इंस्टेड ऑफ, देखिए क्रिटिसाइज बुरा नहीं है, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक मैं भी लेती हूँ। अगर मुझे कोई बोलता है यू नीड टू इम्प्रूव दिस,
आई एम लाइक थैंकफुल टू देम, वाओ आपने इतनी अटेंशन टू डिटेल दी कि कि आपने उस चीज़ को मतलब आई ट्राई टू टेक दैट पॉज़िटिव कि थैंक यू सो मच। अब करना है नहीं करना वो मेरे ऊपर है। सुनती सस की हूँ, करती अपनी हूँ। I think if we take this approach na towards ke, you know, helping people, so world will become a lot better, a lot better. Agree. The last topic that I have in my mind to discuss, it's just not that big topic, but you recently came to UAE, ठीक है? A lot of people 99% पाकिस्तानियों का तो होता है कि एक मर्तबा पाकिस्तान से बाहर जाना है, ठीक है? और 2020 की बात करूँ तो शायद यूएई बहुत अच्छी जगह थी, क्योंकि वीज़े मिल जाते हैं। अब तो शायद यूएई ने भी जो रूल्स निकाले हुए हैं विद रिस्पेक्ट टू कि जो भी पाकिस्तान की कंडीशन है और वीज़ाज़ लग रहे हैं, नहीं लग रहे, ठीक है? But there are multiple people came to me and they are like, "I wanted to move to UAE." And I was like, "Good." मैं आपसे जानना चाहूँगा, यू केम टू यूएई, ठीक है? Hmm. अच्छा ये मैं कपाट काट दूँगा लेकिन पूछ लूँ, आई कैन से कि यार यू केम टू यूएई फॉर जॉब हंटिंग। आप गुड है ना? हाँ, सही है। मतलब ऐसा ना हो मैं बोल दूँ आप ऑफ़िस जाओ और ऑफ़िस वाले बोले ठीक है। सो माय पॉइंट इज़ कि यू केम टू यूएई फॉर जॉब हंटिंग, ठीक है? Hmm. एंड यू केम लाइक यू गेट बैक टू पाकिस्तान अगेन आफ्टर दैट। अगर आपको जॉब नहीं मिलती, तो भी Hmm. कितना फ़ायदा होता है, ये सब आप बता सकती हैं क्योंकि यू आर फ्रॉम दैट फेज़। Hmm. आपको क्या लगता है कि यार किस माइंडसेट से आपको मुल्क से बाहर जाना चाहिए, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि वो आते हैं और वो ये कहते हैं, "अबे यार! इतने पैसे में मैं ये कर लेता।" ठीक है? Hmm. एंड दे आर लाइक कंपेयरिंग थिंग्स विद दैट। आप एक्सपोज़र को फ़ील नहीं कर पा रहे होते, आप ये नहीं देख पा रहे होते कि आप कितने लोगों से मिल रहे हो, आपको पता चल रहा है इंडस्ट्री के बारे में क्योंकि नॉट एवरीवन इज़ परफेक्ट फॉर एवरीवेयर, ठीक है? हो सकता है कि यू डोंट गेट अ जॉब इन यूएई जस्ट बिकॉज़ अल्लाह ताला चाहते हैं कि आप पाकिस्तान में सेम चीज़ जुनैद अकरम वो यूएई में थे, अल्लाह ने उसका रिज़्क लिखा था, वो यूएई से उठ के पाकिस्तान वापस Exactly. चला गया, ठीक है? Exactly. मतलब मैं Hmm. कहता हूँ मैं कहता हूँ कि आप सिर्फ़ मेहनत करो, आपको पता नहीं चलता आप किस इमेजिन अल्लाह ऊपर जो बैठा हुआ है, वो किस तरीके से प्लान वो कहता है कि अच्छा ये चाहिए, नहीं ये अभी ये नहीं होता, अभी 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 ये मिलेगा, ठीक है? जैसे वो होता है ना कि अभी आपको एक गाड़ी चाहिए, नहीं, नहीं अभी तू बाइक चलाएगा, ठीक है? क्योंकि 10 साल बाद जब तू बाइक चला-चला के थक जाएगा, जब तो मैं तुझे दूँगा वो अलग चीज़ है। तो ऊपर वाला तो है, Exactly. ठीक है? बट व्हाट आर द आउटकम्स दैट यू थिंक जब आप यहाँ आए, आपने इंडस्ट्री को देखा क्योंकि आप तो फिर भी लोगों से मिलते हो, आपको पता है कि यार आपको पता है कि इंडस्ट्री कैसे काम करती है, लोग कैसे काम करते हैं, मुल्क में डिफरेंस कैसा है। कुछ लोग होते हैं जो विदाउट रिसर्च के पाकिस्तान से बाहर आ जाते हैं और उनको इतना बड़ा शॉक मिलता है कि वो शॉक से सर्वाइव होने के लिए उनका वीज़ा टाइम खत्म हो जाता है। Hmm. जैसे लोग मेरे पास बहुत सारे लोग होते हैं कि वो आते हैं, वो कहते हैं, "ठीक है 3 महीने का वीज़ा मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगी।" मैंने कहा 3 महीने में से 2 महीने तो तुम्हें मेट्रो समझने में लग जाएँगे, ठीक है? कि मेट्रो चलती कैसे, कहाँ जाना है, कहाँ उतरना है, कौन से स्टॉप्स होगी। हाउ वाज़ योर एक्सपीरियंस? व्हाट आर द आउटकम दैट यू थिंक यार ये मैंने ये चीज़ें सीखी और क्या बताना चाहोगे टिप्स एंड ट्रिक यार आपने जब चीज़ें करी तो आपको किस तरीके से देखते हो लोगों को अगर कोई बताना हो क्योंकि पाकिस्तान में ने बहुत है मैं किसी बंदे से पूछूं यार बस पाकिस्तान से बाहर जाना है ठीक है किसी भी तरीके से लोगों के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन है कि पाकिस्तान से बाहर जाना है ठीक है जो पाकिस्तान से बाहर है उनको पता है कि यार पाकिस्तान में रहने में कितना फायदा है ठीक है एंड इट्स नॉट अबाउट मैम ये बात ठीक है यार हमारे पास सिक्योरिटी इश्यूज है हमारे पास अ लॉट ऑफ थिंग्स देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन द कंट्री बट हमारी जो सोसाइटी है मतलब जिन लोगों को हम जानते हैं, जो मार्केटिंग से रिलेटेड है, जो लिंक्डइन की कम्युनिटी है, ठीक है? आपको पता है 1000-1500 लोग हैं और वो सारे माशाल्लाह से सब सब ग्रो कर रहे हैं। कोई किसी को ये नहीं कहता कि यार ये ग्रो ना करे, सब चाहते हैं वी आर लाइक कोलैबोरेशन अभी जैसे हम कर रहे हैं, ठीक है? आयशा ने Hmm. कोई अच्छा Hmm. काम करा, आयशा को बोलो, उमैन ने कोई अच्छा काम करा, एक्स-वाई-ज़ेड जितने भी लोगों ने काम करा। आप जब यहाँ आए, उसको एक्सप्लोर करा, आपने क्या एक्सपीरियंस करा? क्या चीज़ें सीखी? कुछ लोगों को बताना चाहोगे? दैट्स द लास्ट थिंग दैट आई वांटेड टू डिस्कस इन द कन्वर्सेशन। ओके, सो आई हैड अ वंडरफुल एक्सपीरियंस इन यूएई। मुझे बड़ा मज़ा आया पहले तो। देखिए, आपने जो बात की ना कि ऊपर वाला तो है, बेशक अल्लाह ताला ही रास्ते बनाते हैं आपके लिए और जब आपका माइंडसेट ये होता है, इवन इफ इट डज़न्ट वर्क आउट फॉर मी, इट्स फॉर बेटर, समथिंग एल्स विल वर्क आउट। तो चीज़ें आपके लिए 100% वर्क आउट तो करती ही करती हैं। मैनिफेस्टेशंस
मैं रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैनिफेस्टेशन हैज़ द पावर टू टर्न इनटू रियलिटी। पर इन सब चीज़ों के साथ अगर हम प्रैक्टिकैलिटी की बात करें, देखिए जब मैं यूएई आ रही थी ना, मुझे पता था 1 ही महीने के लिए आ रही हूँ। मैंने अपनी पूरी रिसर्च की। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर घर भी लेते हैं, आप कराची में ही कहीं घर ले रहे हैं, ठीक है? या आप कोई चीज़ छोटी से छोटी गाड़ी परचेज़ कर रहे हैं, आप सब चीज़ें देखेंगे 10-12 हर अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे जाके ऑनलाइन देखेंगे इसके पार्ट्स कैसे हैं, ये कैसी दिखती है। मोबाइल लेंगे, उसके फीचर्स देखेंगे, तो भई आप अपनी जॉब के लिए जा रहे हैं कहीं पर, काम ढूँढने, तो आपकी रिसर्च तो पक्की होनी चाहिए, नॉट जस्ट रिसर्च। आपकी सिर्फ़ इस जॉब से रिलेटेड रिसर्च नहीं, आपको कैसे रहना है, आपकी बजटिंग स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। वहाँ के मैं तो इनफैक्ट वहाँ के मैप्स भी यहाँ से बैठ के देखती थी। हाउएवर आई हैव पीपल देयर, आई हैव माय फ्रेंड्स, माय फैमिली देयर, बट स्टिल क्योंकि मुझे इनिशिएटिव ना अपने आप से लेना पड़ता है क्योंकि अपने लिए कर रहे हैं ना आप, किसी के लिए तो नहीं कर रहे। वहाँ आप जॉब ढूँढने अपने लिए जा रहे हैं ना, तो डिपेंडेबिलिटी जितनी कम से कम आप दूसरों पे रखेंगे, उतना आप जो है ना सर्वाइव भी कर सकते हैं और आगे भी बढ़ सकते हैं। अच्छा, जहाँ तक आपने बात की, हाँ, हर किसी को पाकिस्तान से बाहर जाना है क्योंकि देखिए सिचुएशंस कुछ इस तरीके की हैं, क्यों इंसान फ्रस्ट्रेट फ़ील करता है, उसको जॉब सिक्योरिटी के मसले हैं, उसको एक जनरली भी जहाँ रह रहे हैं सिक्योरिटी का मसला है एंड बहुत सारी चीज़ों में हाँ, पाकिस्तान बिहाइंड है लेकिन एवरीवन हैज़ देयर ओन चैलेंजेस। जो बंदा यूएसए में बैठा है ना, उसके भी अपने चैलेंजेस हैं। आप अगर यूएई में बैठे हो, लोगों को दूर से देख के सबकी लाइफ लगती है जो बस सबको लगता है पाकिस्तान के बाहर तो लाइफ अच्छी है, जन्नत ही जन्नत है। ऐसा नहीं होता। हाँ, पर्क्स होते हैं, बेशक आपको एक बेटर लाइफ़स्टाइल मिलता है, लेकिन उस एवरीथिंग कम्स विद अ कॉस्ट। दैट लाइफ़स्टाइल कम्स विद अ कॉस्ट। हो सकता है आप फैमिली से दूर जा रहे हों, आपको अपने लव्ड वन्स को छोड़ना पड़ रहा है, अकेले रहना पड़ रहा है, हर काम जो यहाँ इतने आराम से ज़िंदगी गुज़ारी, वहाँ हर चीज़ खुद करनी पड़ी। देयर इज़ अ कॉस्ट ऑफ एवरीथिंग। सो मेरे केस में ये है, मेरा माइंडसेट ये है कि मैं जो हूँ ना, जिस मोमेंट में हूँ या कोई काम कर रही हूँ, मैं देखती हूँ उसमें कितनी मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी है, चीज़ें हो जाएँगी। एक चीज़ वर्क नहीं की तो कोई और चीज़ वर्क कर जाएगी। तो जब मैं वहाँ भी गई, तो मैंने कैच अप विद आयशा को प्रमोट किया। जॉब मुझे पता था कि फ़ॉरेन जॉब मतलब जॉब इतनी आसान नहीं है, उधर वीज़ाज़ की जो सिचुएशन है। सो मैंने वहाँ जाके कहा कुछ नहीं तो चलो लेट्स डू द पॉडकास्ट। मुझे लोग मिल गए, मैंने 4 पॉडकास्ट निकाल लिए वहाँ पे, मैंने लोकल अरब का भी कर लिया। सो यू हैव टू बी प्रेज़ेंट इन दैट मोमेंट एंड थैंक गॉड व्हेन यू स्टार्ट काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स, योर प्रॉब्लम्स इवेंचुअली स्टार्ट टू गेट रिड ऑफ यू खुद से। प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, यू हैव टू प्लान थिंग्स। देखिए, एक आपका प्लान होता है और फिर एक अल्लाह का प्लान होता है, पर अपना प्लान तो बनाओ पहले। क्या पता उसके साथ ही अल्लाह का प्लान भी जुड़ जाए, बट इफ यू डोंट हैव अ स्ट्रैटेजी, नो स्ट्रैटेजी मीन्स दैट यू आर निल, यू आर ज़ीरो, यू आर ऑन ज़ीरो। आपको पता तो है मुझे ये चाहिए, पर कैसे? जैसा आपने कहा रोड मैप तो हो, तो अपनी भी तो कोई प्लानिंग हो और फिर उस प्लानिंग पे आपने रखना है फोकस। क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस तो बहुत आएँगी, बट यू डोंट हैव टू पे अटेंशन टू डिस्ट्रैक्शंस। और जब मैं बाहर आई तो मैंने इसीलिए एन्जॉय भी किया। हाँ, जॉब नहीं हुई, अच्छा, जबकि मुझे बिलीव था कि मुझे मिल जाएगी। उसका एक रीज़न ये भी हुआ कि मेरी डिग्रीज़ ही जो करंट डिग्री थी वो अटेस्टेड नहीं थी, वरना मुझे अभी भी ऐसा लगता है मुझे मिल जाती, इतनी कम्पिटिटिव मार्केट में भी, क्योंकि मेरा यकीन बहुत स्ट्रॉन्ग था। एनीवे व्हेन आई केम बैक, हाँ, आई गॉट इनटू अ काइंड ऑफ डिप्रेशन कि अब क्या करूँ? जॉब थी मेरे पास ऑब्वियसली, बट स्टिल आपको होता है कि जो सोचा था वो नहीं हुआ। आई स्टार्टेड टू वर्क मोर ऑन कैच अप विद आयशा, और मुझे लगता है इन कुछ महीनों में आने के बाद जितना मैंने कैच अप विद आयशा को बिल्ड किया है, जितने मेरे नेटवर्क्स बढ़े हैं, वो शायद वहाँ रहते हुए तो नहीं होता। और क्या पता आगे मैंने जाना हो, मतलब अल्लाह ने लिखा हो मेरे लिए कुछ, बट अब अगर मैं जाती हूँ तो मैं अपना पर्पस और स्ट्रॉन्ग करके जाऊँगी। सो इट्स बेटर विन-विन सिचुएशन ही है ना। So you have to think that way if you want to succeed in life. थैंक यू सो मच यार ये बताने के लिए, क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल इज़, ये बहुत ज़रूरी होता है जो आपने कहा है ना, ये फ़ेज़ सिर्फ़ आपको पता होता है जब आप कोई चीज़ करना चाहते हो और वो आपको नहीं मिलती है ना। आई हैव बीन इनटू दैट फ़ेज़, और आपकी ये बात भी सही थी कि जो पाकिस्तान से बाहर रहता है, लोगों को ऐसा लगता है कि दे आर पेइंग अ प्राइस। लोगों को लगता है उनकी लाइफ़ बहुत अच्छी है, हर बंदा एक प्राइस पे कर रहा है, कोई भी सिनेरियो में, ठीक है? इट्स नॉट ईज़ी, बट येस, मैं इसके बाद भी लोगों को कहता हूँ कि अगर आपके पास 0.1% चांस भी है,
डू विजिट आउटसाइड पाकिस्तान, उस सबको ये एक्सपोज़र मिलता है, आपको पता चलता है ओके फाइन यहाँ पे लोग ऐसे ज़िंदगी गुज़ारते हैं, ठीक है? और कुछ नहीं पता, आई एम प्रीटी मच श्योर कि इंशाल्लाह अगले साल मैं आपको देखूँगा और आप यहाँ पे कैच अ विद आयशा करने आई होंगी किसी, तो this is how the world goes. But thank you so much, Aisha. It's my pleasure to have you on the session. We have discussed a lot of good things क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि होस्ट के इंटरव्यू होने चाहिए क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें लोगों से सीख लेता है, ठीक है? लेकिन वो कभी बताता नहीं है, ठीक है? तो अब मैं सोच रहा हूँ कि और मैं बहुत सारे होस्ट को लूँ और उन्होंने जितनी नॉलेज दी हुई है ना, उन सबसे नॉलेज इकट्ठी करके पैनल डिस्कशन करवा really लें आप। special brand. Yeah, but it's good to have you over here in the session. Thank you so much for taking out time. It's my और pleasure. एक चीज़ जस्ट बिफोर लीविंग जस्ट वन थिंग टू आपकी ही बात को कंटिन्यू करते हुए टू एवरीवन इन योर स्टूडेंट फेज़ और इन योर लाइफ एक बार ना अकेले सोलो ज़रूर ट्रैवल करें। आपको अपने बारे में वो चीज़ें पता चलेंगी जो शायद आपको कभी आपने अपने बारे में ना जानी नहीं होंगी। सो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट टू नो योरसेल्फ। सो ऑलवेज़ एक दफ़ा ट्राई करें सोलो ट्रैवल करें। हाँ, एक दफ़ा सोलो ट्रैवल करें और लड़कों को मैं कहता हूँ कि अपने घर का कचरा उठा के खुद बाहर फेंका करें क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि बाहर ही क्या इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। But it's my pleasure, Aisha, for having you on the session. Thank you so much for your time. Inshallah, we have discussed a lot of good things, and people will try to resonate with that thing. And if they have any pointers, they will reach out to you. And just for the audience, please don't reach out to her like, "Hi, hello, my name is this." Please पूरे मैसेज दिखेगा, तो आयशा भी आपको रिप्लाई करेंगी. But thank you so much, Aisha. Thank you so much for your time. थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। Allah Hafiz.